Right, so this is the sample report. Now, as I told you that we have all these intelligences, रखो ना, मैं कर दे रहा हूँ, रखो उल्टा रखो ना बस वाली। please mute yourself. So this 48-page reports comes, which gives your personality type and your inborn potential. So this is the lobe which we have discussed. So this way, percentage will come. Prefrontal lobe, that means both of your thumb. Okay, so that gives your personality type, how good you are at execution, and it also shows your cognitive functions. Your frontal lobe is your both index fingers, which shows your emotions, reasoning, planning, movement, part of speech, creativity, judgment, problem solving. So logical intelligence, and we also call it as spatial intelligence. That means how good you are at executing those logics which you have taken from one index finger. So both the hands are connected. Then your parietal lobe is your middle finger. That means how good you are at doing the work with using your fine motor skills and gross motor skills. Doing work at one place and doing work at where your whole body is moved. Okay. Then comes your ring finger, temporal lobe, which shows your emotional skills, how good, how emotional you are. This is also called your musical intelligence, which shows your listening skills, and language, linguistic expressions, that shows your hearing skills, hearing memory. And then the last is little finger, occipital lobe, which shows your observation and interpretation skills. So with this, we come to know that how much psychological capability you have and how much planning capability you have. And then there are learning suggestions which are given. Also, you will come to know how much your left brain is active and how much your right brain is active. And this is your personality type. As I told you in the beginning, one hand shows, right thumb shows your uh, secondary personality, left thumb shows your primary personality. Now here, this is a sample report. This means that the person is same with family and friends, and he's same with strangers also. So his both personalities are same. Now you can see here all the intelligences are given. Self-smart means intrapersonal, means self-connection, means your right thumb. Number smart, how good you are at number, that is your right index finger. Logical abilities are shown. Then fine motor skills, your right middle finger, your right ring finger shows your word smart, means language skills, linguistic expressions. Observations is your little finger, right little finger. Okay, so if you start from here, this is your actually right hand, thumb, index finger, middle finger, then ring finger, and then this is your little finger. Then people smart, how good you are connected with other people. So interpersonal, so this starts with your left thumb. So people smart is your left thumb. Then space smart is your left index finger. GMS, gross motor smart, is your left middle finger. Emotion is your left ring finger. And picture smart is your left little finger. So this is your left hand and this is your right hand. So this all percentage comes in the DMIT report and you get to know all of your intelligences. Okay. Now, after knowing your intelligences, you will be able to know that are you a visual learner? Are you an auditory learner? Are you a kinesthetic learner? And how much percentage? Actually, the learning method is always a mixture of at least two,
but you will come to know that how you will be able to learn quickly. Like here, this person can easily learn through auditory resources, because 46% is it, he is auditory learner, that means through audio. 34% is visual learner, that means learning through book, chart, reading, observation. So, and the 20% is kinesthetic, that means learning through activities. So as a parent, as a teacher, if you know that your child can learn maximum through any which of these, it makes it very easy for you to get the maximum result from the child, right? Also for yourself, you will come to know that, okay, I can learn the best in this by this method. Although I said it is a mixture, but still which method works best, you will come to know for yourself. This way, your activity is driven by multiple intelligences. Now, this is very important. You will come to know about this, that CQ, AQ, EQ, and IQ. Creative, how creative you are. Adverse quotient, how much capable you are to handle adverse situation. Emotional quotient, your intra and interpersonal, both the thumbs gives your emotional quotient. Your self connection and with your connection with other people gives your emotional quotient. So don't think that your emotional intelligence gives your EQ. No, रिंग फिंगर पे जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो आपका इमोशनल क्वेश्चन नहीं देता है. इमोशनल क्वेश्चन आता है आपके दोनों थंब से. आप दूसरों को कितना समझते हो, आप खुद को कितना समझते हो. ओके. And your IQ means your logic and your linguistic, logic and language. Now we should have a balance of all these four for a better life. So here you can see that EQ is low. So you'll come to know that you have to work on his EQ. Okay, his CQ is very good, IQ is very good, but AQ and EQ are less. So you will come to know, for a balanced life, it's not only IQ or EQ or AQ, it's a combination. And you have to accordingly work with the child. Okay. This will show the areas where the child can work best. So 4 or 5 stars means the best career option. But we don't actually go for career options for children who are young, like 4 years, 5 years, or below 12, I would say, because we actually have to first work on their present skills. And after grade 9, we do a psychometric test to check that all the intelligences are still same or there is any variation, and then we give the career options. Okay. So here you can see your personality, like here the personality, primary and secondary personality, both are adaptive. So person is same with outsiders and with known people. So what are the strengths, weakness, threats? Now this is a general criteria, like all the dove personalities, strength, weakness. There are total 4 personalities: eagle, peacock, owl, and dove. So you will get to know your personality type. Now do remember one thing, that it doesn't mean कि आपका अगर dove आ गया तो इसका मतलब ये है कि सारे पॉइंट्स आप पे एप्लीकेबल हैं. नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वर्ल्ड में सिर्फ 4 ही तरह के लोग हैं. तो कई बार रिपोर्ट देखने के बाद में अगर क्लाइंट आपको बोलता है नहीं इसमें से ये एक चीज तो मेरी सही नहीं है, देन यू कैन से दैट दिस इज अ जनरल क्राइटेरिया फॉर डव पीपल एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल मैच बट नॉट ऑल द पॉइंट्स. ओके, क्योंकि बहुत सारी दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना दुनिया में सिर्फ 4 ही तरह के लोग हैं.
So this is your right brain and left brain. Now this will also give your inborn potential TRC, total ridge count. So total ridge count is your inborn potential, कि आपके पास कितना पोटेंशियल है ना. टोटल रिच काउंट, सारे फिंगर्स की जो काउंट आएगी वो टोटल करके हम ये रिच काउंट देते हैं, जिससे आपका इनबॉर्न पोटेंशियल पता चलता है. So this is your percentage. अभी this is the most important part. अभी तक आपने जो भी किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक लेफ्ट ब्रेन लोब है और एक राइट ब्रेन लोब है ना. तो लेफ्ट ब्रेन का मतलब हुआ राइट हैंड, ठीक है ना. अभी हमने इतनी बार ये चीज रिपीट किया, आपको ये चीज याद होनी चाहिए. ये आपका कौन सा हैंड है? राइट हैंड है ना. तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ये हमारा राइट हैंड है. तो राइट हैंड पे हमारा खुद से कनेक्शन, हमारा लॉजिक, हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, हमारी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं. और हमारे लेफ्ट हैंड पे हमारा दूसरों के साथ कनेक्शन, हमारा विजुअलाइजेशन, हमारा ग्रॉस मोटर स्किल, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और हमारी इंटरप्रिटेशन होती है. तो ये परसेंटेज आ जाता है यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर आप और क्या देख पा रहे हो? कुछ टर्म्स आपको यहाँ दिख रहे हैं. एल दिख रहा है, x 2.1 दिख रहा है, एल दिख रहा है, वर्ल दिख रहा है ना, डब्ल्यू दिख रहा है. ये क्या है? अब यही वो पॉइंट्स हैं जो हर इंडिविजुअल को एक दूसरे से अलग बताते हैं. अदरवाइज तो सिर्फ परसेंटेज ही अलग होती कि मैं उससे कितना अलग हूं. ये सिर्फ इससे पता चलता है कि मेरी परसेंटेज क्या है और तुम्हारी परसेंटेज क्या है. लेकिन हमें पता है कि कितने तरह तरह के लोग होते हैं. कोई बहुत जिद्दी होता है, कोई आसानी से मान जाता है ना. किसी का कैसा नेचर होता है, किसी का कैसा नेचर होता है. कोई बोल के एक्सप्रेस करता है, कोई नहीं करता है. कोई खुद से सीखता है, कोई एनवायरनमेंट से सीखता है. किसी को बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, किसी को नहीं होता है. कोई अपने आप में खुश है, कोई दूसरों के साथ खुश है. वो सारी चीजें क्यों हो रही हैं? वो ये इन चीजों से हो रही हैं जिसको हम बोलते हैं लूप, वर्ल और आर्क. अगर आप अपने फिंगर के पैटर्न्स देखोगे, अपने फिंगरप्रिंट्स अभी आप ऑब्जर्व करो, आपको फिंगरप्रिंट्स अपने नजर आएंगे टिप्स पर. उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं. तो ये सिर्फ इस परसेंटेज से नहीं पता चलता कि आप एज अ पर्सन कैसे हो. आपका क्या पैटर्न लगा है, उस पैटर्न से पता चलता है. ठीक है. अब इस रिपोर्ट में आप देखेंगे हर इंटेलिजेंस जो आपकी वीक है, उसमें आप ये वेज यूज कर सकते हैं अपनी उस वीकनेस को बढ़ाने के लिए. अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए आप इन स्ट्रेंथ्स में से कोई भी एक या दो हाईलाइट करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. लूप, वर्ल और आर्क के बारे में मैं आपसे ये रिपोर्ट के बाद डिस्कस करती हूँ. एक बार मैं ये रिपोर्ट फिनिश करती हूँ. तो इस तरह से आपको जो इंटेलिजेंस, जो रैंक आपकी नंबर 7 है, जो रैंक पीछे है, उसे क्या कैसे बढ़ाएं वो सब दे रखा है ना. जो रैंक 1 है दैट मीन्स वो आपकी स्ट्रॉन्ग है. 6 है तो आपको उसे कैसे बढ़ाना है. 3 है, 1 2 3 तक फिर भी ठीक है. 4 से हम ये इनमें जो वेज दे रखे हैं वो यूज करके उन स्ट्रेंथ, उन इंटेलिजेंसेस पे हम वर्क करते हैं और उसे बढ़ाते हैं. अब ये टिप्स हैं, स्टडी टिप्स. जैसे मैंने बताया कि इस पर्सन का ऑडिटरी लर्निंग ज्यादा है, तो इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए. अगर उसकी ऑडिटरी स्किल्स ज्यादा है तो एज अ टीचर आपके लिए, एज अ पेरेंट आपको उसे टेस्ट देना है, तो ये बेस्ट टेस्ट टाइप है उसके लिए. अब ये जो मैं वर्ल लूप बता रही थी, ये वर्ल ऐसा होता है. अगर आपके फिंगर्स पे ऐसे पैटर्न है, गोल सर्कल, तो वो वर्ल हुआ. वो लोग खुद से सीखते हैं.
कॉग्निटिव लर्नर्स होते हैं, है ना। वर्ल्ड टाइप में एक जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि वर्ल्ड के अंदर और क्या क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के अंदर जो फीचर है वो ये है कि जिनके ये पैटर्न लगे होते हैं वो सेल्फ लर्नर होते हैं। तो आपकी फिंगर पे कितनी जगह ये पैटर्न बने हैं उससे पता चलेगा कि आप कितना परसेंटेज सेल्फ लर्निंग करते हो। जैसे यहाँ पर 10% है, इसका मतलब किसी एक ही फिंगर पे वर्ल्ड पैटर्न है, और इसलिए वो बच्चा उस पर्टिकुलर स्किल को, उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को खुद से सीखता है। इफेक्टिव लर्निंग जहां पर लूप है, जहां पे हमने अभी एल देखा था, तो जहां पर जिन जिन फिंगर्स पर एल है, यानी 7 फिंगर्स पे एल लगा हुआ था, वो बच्चा उन इंटेलिजेंसेस को एनवायरनमेंट से सीख सकता है, यानी कि लोगों से, एनवायरनमेंट से आपको अगर उसे सिखाना चाहोगे तो वो जल्दी सीख लेगा। लेकिन वर्ल्ड टाइप के जो बच्चे हैं वो अपना सेल्फ मोटिवेशन के बिना नहीं सीखते। अब ये आर्क टाइप है, अगर ऐसा पैटर्न कहीं पर होता है, ये आर्क बहुत रेयर होता है, ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न है उन बच्चों को उस जगह पर 1-to-1 फोकस लर्निंग की जरूरत होती है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस, ये हमारी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है। एक जनरल आइडिया है कि ईगल पर्सनालिटी और डव पर्सनालिटी का रिलेशनशिप, लेकिन मैंने आपको बोला ना ये पैटर्न, वर्ल, लूप और आर्क वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जनरल क्राइटेरिया है कि डव पर्सनालिटी और ईगल पर्सनालिटी की कितनी बनेगी आपस में, या पीकॉक के साथ कितनी बनेगी, या आउल के साथ कितनी बनेगी। लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स आप पर एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पर कौन से पैटर्न लगे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी वजह से आप डव होते हुए भी दूसरे डव पर्सन से अलग हो सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी DMIT रिपोर्ट थी। अब मैं आपसे वर्ल्ड, लूप और आर्क के बारे में बताऊंगी। जस्ट अ मिनट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वर्ल भी कितने तरह तरह के वर्ल्स लगे हैं, तो आपके फिंगर पे इनमें से कौन सा पैटर्न है वो डिसाइड करेगा कि आपका नेचर कैसा है, और आपको उस बच्चे को हमें किस तरह से डील करना है। तो ये वर्ल के पैटर्न्स हैं, है ना। इसी तरह से लूप के भी पैटर्न, ठीक है। तो अगर एल भी लगा है तो कौन सा वाला एल लगा है, आर्क लगा है तो कौन सा वाला लगा है, उस हिसाब से पर्सनालिटीज आती हैं, वो हमारी फिंगर। अब ये जो पैटर्न है ये जिंदगी भर नहीं बदलते हैं, ठीक है, जिसका जो पैटर्न लगा है वो वही रहता है। परसेंटेज जो इंटेलिजेंस है, कि आप मान लीजिए अभी आपका 12% है लॉजिकल इंटेलिजेंस, आप उस 12 को 14-15 कर सकते हो। आप उस, अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो वो और कम हो जाएगी, लेकिन उस पर पैटर्न आर है, सॉरी एल है, डब्ल्यू है या आर्क है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो DMIT से आपका टाइप पता चलता है जो और किसी भी तरीके से पता नहीं चल सकता है। ठीक है, अभी हम क्विकली 1 मिनट में फिंगर साइकोमेट्रिक टेस्ट पे आएंगे। अगर कोई बच्चा है जो 12 इयर्स के ऊपर है या कोई एडल्ट है, उसका हम दोनों क्यों करते हैं कि बचपन में जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे, उसके बाद में ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसे कैसी सराउंडिंग मिली, उसे कैसा एनवायरनमेंट मिला, उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटेलिजेंसेस बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, है ना। तो वो हमें साइकोमेट्रिक में ही पता चल सकता है। दोबारा हम फिंगरप्रिंट 10 साल के बाद भी लेंगे तो भी सेम ही आएगी। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि एनवायरनमेंट का
अगर हमने वर्क किया है किसी इंटेलिजेंस पे तो रिजल्ट क्या आया वो साइकोमेट्रिक में पता चलेगा। अगर आपकी साइकोमेट्रिक रिपोर्ट और आपकी डीएमआईटी रिपोर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, उसका मतलब ये होता है कि आपके एनवायरनमेंट में की वजह से कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। यानी कि या तो आपको बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला है या फिर बहुत अनफेवरेबल एनवायरनमेंट मिला है। अगर इंटेलिजेंस बढ़ गई है तो फेवरेबल है, और अगर घट गई है, कम हो गई है, तो उसका मतलब हुआ कि अनफेवरेबल है। ठीक है, तो ये मैं आपको साइकोमेट्रिक रिपोर्ट ठीक है, ये साइकोमेट्रिक रिपोर्ट है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इसमें पैटर्न नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ जो है इंटेलिजेंसेस आएंगी। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर रैंक देखनी है हमें, रैंक 1 पर जो है, क्या वो डीएमआईटी में भी रैंक 1 था? नहीं। इसका मतलब कोई चेंज आपके एनवायरनमेंट में, अपब्रिंगिंग में या तो बहुत फेवरेबल या बहुत अनफेवरेबल रहा होगा। तो इस तरह से आप दोनों को मैच करके काउंसलिंग करोगे बड़ों की। लेकिन बच्चों के लिए हम सिर्फ डीएमआईटी टेस्ट करते हैं। ऑल्दो अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आता है तो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो एक अलग प्रोसीजर है। बट अदरवाइज इन जनरल बच्चों का हम डीएमआईटी करते हैं, और 12 के अबव या जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बात होती है या एडल्ट्स की बात होती है तो हम दोनों करते हैं। दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।